This chapter, from the name itself, is divided into three broad concepts. First is the concept of units we need to understand, then we'll go on to the concept of dimensions, then we'll go on to the concept of measurement, right? So we'll see all of them one by one all these concepts one by one so that a complete understanding of them is achieved. I hope आप लोगों ने जब अपना 11th और 12th स्टैंडर्ड सिलेबस पढ़ा होगा तो इन सब टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ लिया होगा. बट नाउ इट इज टाइम टू टेक एन ओवरव्यू or I can say background of this particular thing, overlook of these particular things, so that you can understand these things or these concepts, so that you can solve the MCQs, right? Synopsis का मतलब ही होता है कि आपको concepts इस तरह से introduce किए जाए, इस तरह से पढ़ाए जाए ताकि आप MCQs उनके से सॉल्व कर सको. ओके, तो सिनॉप्सिस में क्या होगा, we'll touch upon concepts. हम डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, डिटेल पढ़ाएंगे तो वही 11-12 सिलेबस हो जाएगा, राइट? हम टच करेंगे हर कंसेप्ट को, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, हाउ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड वैसा बताएंगे. we'll also give you some formulas to remember, certain notes to remember, so that it is easier for you to solve the MCQs once we come to them. okay, तो जब कभी सिनॉप्सिस पढ़ाया जाए, जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा जाए, प्लीज राइट दैट डाउन. बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनेंगे, हर चैप्टर के कुछ फॉर्मूला लिस्ट बन जाएंगे आपके पास, हर चैप्टर के कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर बन जाएंगे आपके पास, एंड दैट विल बी ऑफ रियली ग्रेट हेल्प to understand the chapter. Okay, so let us begin the chapter, but before beginning the chapter I'll introduce myself. My name is Petiwala Muhammad Salman. I'm a mechanical engineer from IIT Madras, gold medalist, and I'll be taking this particular chapter. Let's start. So as I said, we'll start with the first part, but before going to the units concept, let us see what is this particular word, physical quantity. This is the first thing which we learn in standard 11. What is a physical quantity? एक quantity को physical quantity कब कहेंगे, ठीक है? So how do I define physical quantity? Physical quantity is a quantity that can be measured, explained and expressed in the form of, I can say, laws. Or quantity that can be measured, comma, expressed, okay, and explained in the term, explained in terms of laws. ये बेसिक डेफिनेशन. सिंपल सी बात बोलूं तो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, राइट? ओके, मुझे बताओ कौन सी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं? क्या एक मास को हम मेजर कर सकते हैं? यस, मास को हम मेजर कर सकते हैं. देयरफॉर मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट? दिस कैन बी मेजर्ड, राइट? किसी भी चीज का मास मेजर कर सकते हो. दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, राइट? मैं कह सकता हूं लेट्स से 2 kgs ऑफ पोटैटोस, तो हम क्या करें, पोटैटोस के मास को मेजर कर सकते हैं, राइट? 5 kg को मेजर कर सकते हो. दिस विल बी अ फिजिकल क्वांटिटी. लेंथ, क्या लेंथ को मेजर किया जा सकता है? Yes, length can also be measured. Therefore, length is also a physical quantity, right? मैं कह सकता हूँ, for example, distance from Mumbai to Pune is 200 kilometers. तो 200 kilometers क्या हो गया? एक length, distance is length, right? So मैं measure कर सकता हूँ. So वो भी हो गया एक physical quantity. One more example. Let's say temperature. Can I measure temperature? Yes, we can measure temperature, right? It can be measured. So therefore this is also a physical quantity. short form लिख रहा हूँ, PQ physical quantity. टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. मैं बोलता हूँ आज बहुत गर्म है, टेम्परेचर इज 40 डिग्री. 40 डिग्री मतलब मैंने मेजर किया, राइट? 40 डिग्री. मैं कहता हूँ बहुत ठंडी लग रही है, टेम्परेचर इज 5 डिग्री. सो therefore मैंने मेजर किया है, सो इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट? वन मोर एग्जाम्पल टू गो फॉरवर्ड विद. लेट्स से हैप्पीनेस. क्या हम हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं? मैं बोलता हूं आज मैं 10 खुश हूं, कल मैं 20 खुश था, परसों में 50 खुश हो जाऊंगा. ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसा 10-20 में हम खुश थोड़ी होते, राइट? इट कैन नॉट बी मेजर्ड. यू कैन नॉट मेजर हैप्पीनेस, राइट? सो इट्स नॉट मेजर्ड और नॉट मेजरेबल, राइट? सो अगर ये मेजरेबल नहीं है तो इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, बराबर. सिमिलरली एंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट, ओके, एक्साइटमेंट या एंगर, क्या मेजर कर सकते हैं हम किसी का एंगर? क्या मैं कह सकता था मेरे आज पिताजी 20 एंग्री थे,
कल मेरे पिताजी 10 एंग्री थे, ऐसा नहीं कह सकता, राइट? नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू कैन नॉट मेजर दीज स्टफ, राइट? सो दीज आर इमोशंस. इमोशंस आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, यू कैन नॉट मेजर देम. बट हाँ, मास, लेंथ, टेम्परेचर, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? सो आपको समझ में आ गया कि द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड are physical quantities, measured, explained, expressed are in terms of laws are physical quantities, right? बहुत सारी physical quantities हम पढ़ेंगे इस chapter में और throughout physics में, right? But what is the basic method of writing a physical quantity? So a physical quantity, for example, mass, if I write down mass is 2 kilogram, और short form में ऐसा लिखते हैं mass equal to 2 kg, राइट? मास इक्वल टू 2 kg. मैं कहता हूं मैंने मार्केट गया, आई बॉट 2 kg एप्पल्स. सो दिस इज नथिंग बट मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना? यू कैन मेजर इट, राइट? अभी अभी देखा. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट अ न्यूमेरिकल या नंबर, सो न्यूमेरिकल. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट यूनिट, बराबर? दिस आर कॉल्ड यूनिट्स, किलोग्राम, ग्राम्स, राइट? मास का यूनिट है. So this is nothing but your unit. So therefore, a physical quantity can be written as numerical into unit, बराबर? Numerical multiplied by unit, that is n into u, numerical and along with the unit. Okay. So दोस्तों, if the physical quantity is same, therefore I can say n into u will be a constant. हाँ या ना? So take one down. So unit या numerical is inversely proportional, right? एक को नीचे ले लो, constant आ रहा है, inversely proportional हो जाएगा. That means what? That this unit and numericals are inversely proportional. That means what? मतलब जितना बड़ा unit होगा उतना छोटा number होगा, right? Bigger the unit, smaller the number. What does this mean? Let me give you an example. Smaller the number. For example, we know 1 kilometer is equal to 1000 meters, right? तो किलोमीटर और मीटर में बड़ा यूनिट कौन सा है? आप बोलोगे सर किलोमीटर बड़ा है, राइट? सो बड़ा यूनिट के पास छोटा नंबर होगा और मीटर छोटा कंपैरेटिवली, राइट? सो छोटे नंबर के, छोटे यूनिट के पास बड़ा नंबर होगा, राइट? सो आई कैन, दैट्स व्हाट इट मींस. बिगर द यूनिट, smaller the number, right? Simple example. Fine. Okay. So this was the way we express physical quantity. Physical quantity is numerical into unit. Now दोस्तों, let us see what are different types of I can say units, physical types of physical quantities we encounter. Right? Let's go on to the next concept very quickly, and we'll see what are the types of physical quantity. So one type of physical quantities are ratios. The first type is ratios. Ratios are those physical quantities which have no dimension, I can say no units. There are no units in this. For example, I'll give you an example. आप लोग ने पढ़ा है strain, right? What is strain? Strain is nothing but change in length upon original length. हाँ या ना? बराबर? चैप्टर इलास्टिसिटी में पढ़ा है. Upon original length, right? So both are lengths. ये भी मीटर में वो मेजर किया जाएगा, ये भी मीटर में मेजर किया जाएगा. मीटर कैंसिल हो जाएगा. Therefore, strain will have no units. उसका यूनिट ही नहीं होगी. So therefore, ratios are those physical quantities which have no units. For example, strain का कोई यूनिट नहीं होता. Strain का सिर्फ वैल्यू होता है. For example, strain हम लिखते हैं 10. That's it. उसका कोई यूनिट नहीं होता, सिर्फ वैल्यू, only value. I may say only value. That's it. No unit. Okay. सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक और एग्जांपल चाहिए क्या? ओरली दे देता हूं, ध्यान से सुनो. वन मोर एग्जांपल विल बी रिलेटिव डेंसिटी, राइट? रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते. व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? आल्सो कॉल्ड एक्सप्रेस लाइक दिस. आई विल कॉल दिस एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2. रिलेटिव डेंसिटी, ये पढ़ा है आप लोगों ने, क्या है? रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस upon density of water, upon
डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आप देख सकते हो गाइस, ये भी डेंसिटी है, यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता। ओके, नाउ लेट अस गो ऑन टू सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नथिंग बट दे आर स्केलर क्वांटिटीज। What are scalar quantities? आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है what are scalar and what is vector, right? So scalar quantities are quantities which have only magnitude, no direction. So I'll write down quantities which have only magnitude but no direction. ओनली मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड होगा या वैल्यू होगी पर डायरेक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मास फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 5 kg, सिर्फ वैल्यू है, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता दोस्तों। मैं ये नहीं कह सकता कि आई हैव 5 kg बनानास लेफ्ट, नॉट पॉसिबल, राइट? लेफ्ट राइट नहीं होता, मास में सिर्फ वैल्यू होती है, राइट? सो दिस इज ओनली वैल्यू, नो डायरेक्शन। सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल, टाइम। लेट्स से मैं कहता हूं टाइम इज 20 सेकेंड्स अप, 20 सेकेंड डाउन। अप डाउन होता है टाइम में? नहीं, सिर्फ टाइम की वैल्यू होती है, नो डायरेक्शंस, राइट? फाइन। सिमिलर, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर स्केलर क्वांटिटीज है, तो नेक्स्ट वाला कौन सा होगा? वेक्टर क्वांटिटीज, ऑफ कोर्स। सो वेक्टर क्वांटिटीज विल बी दोस क्वांटिटीज व्हिच विल हैव, आप मुझे बताओ, आप लोग एक्सपर्ट हो इसमें, बता सकते हो। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। So quantities that have both magnitude and direction. For example, simple example लेता हूं, force. So force का magnitude होता है, for example force if I say 5 newtons applied left side. What does that mean? For example, if this is a body, okay, I apply a force of 5 newtons towards the left side. Left side matlab the force is, let's say, like this, right? 5 newton, short form में n, 5 newton को 5n लिखते हैं, right? So applied left side. What does this indicate? This indicates that the force, this F 5 newtons is the value, that is the magnitude, and this is the direction, right? So फोर्स ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके पास डायरेक्शन भी होगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू योर फिजिकल क्वांटिटीज। मेक अ नोट अप टिल हियर, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। Friends, up till now we have seen that we can define the different types of physical quantities as ratio में define कर सकते हैं। The physical quantities can be either a scalar or a vector, right? अब देखते हैं दोस्तों one more method of classification of physical quantity, that is into fundamental quantities and derived quantities। ये बहुत important है और इसके basics जो है ना वो MCQ solve करने बहुत काम आएंगे। Okay, so another way of classification of physical quantity is fundamental quantities and derived quantities. Okay, now first let me define them। मैं उनको डिफाइन करता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ओके, सो दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं? जो फंडामेंटल हो। अब फंडामेंटल किसे कहते हैं? जो बेसिक हो, सबसे इंपॉर्टेंट हो, यानी अगर उसको खुद को डिफाइन करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप से ही खुद को डिफाइन कर देता है, सो उसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। कैन से फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन, अ क्वांटिटी which does not need any other quantity, okay, any other quantity for its definition is called fundamental quantity.
ओके, जिसको किसी चीज की नीड नहीं होती वो अकेले ही अपने आप ही डिफाइन कर सकता है, ठीक है, इसको किसी की नीड नहीं होती, राइट, उसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, सेल्फ सफिशिएंट होता है। पर अगर डिराइव क्वांटिटी की बात करूं तो उसको फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत होती है फॉर इट्स डेफिनेशन, राइट। सो डिराइव क्वांटिटी इज समथिंग, अ क्वांटिटी which needs fundamental quantity for its definition, which needs fundamental quantity for its definition is called derived quantity, is called derived quantity. Okay, I'll give you an example to start with. Example, there are a lot of fundamental quantities, but एक example से start करता हूँ. Example, length is a fundamental quantity. Length जो होता है ना, वो एक fundamental quantity होता है. क्यों एक fundamental quantity होता है? क्योंकि जो length, for example, length of this pen, for example, मैं कहूँ length of this pen is 10 centimeter, right? So एक fundamental quantity है. ये किसी और चीज पे depend नहीं करता, right? Okay. Similarly, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. मैं कहता हूं अभी इस वक्त शाम के 4 बज रहे, ठीक है, दिमाग में एक नंबर आया, अभी इस वक्त शाम के 4 बज रहे, वो 4 बजे किसी और पे डिपेंड नहीं करता, 4 ही होते, राइट. तो टाइम इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी. पर दोस्तों, इफ यू टॉक अबाउट अ डिराइव क्वांटिटी, देन एग्जांपल ऑफ अ डिराइव क्वांटिटी इज, फॉर एग्जांपल, स्पीड. What is speed? Speed is nothing but it is distance या length upon time, right? Speed का basic formula क्या होता है? It is distance upon time, right? Distance is nothing but it's a length, right? So speed is nothing but length upon time. So can I say speed इन दोनों पे depend करता है. किन दोनों पे? Length और time पे, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. कौन? स्पीड, राइट. सो देयरफॉर स्पीड बिकम्स अ डिराइव क्वांटिटी. और लेंथ और टाइम ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, ये अपने आप अकेले होते हैं, इनको किसकी भी जरूरत नहीं होती. दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी. स्पीड को लेंथ और टाइम की जरूरत है, राइट. तो स्पीड बन गया डिराइव क्वांटिटी, राइट. आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स, but let us list down fundamental quantities. So guys, in nature there are 7 fundamental quantities. Okay, so fundamental quantity का एक list बनाते हैं. Let's start. So the first one is length. Okay, the second one is mass. Okay, the third one is time. All these are fundamental quantities. Okay, the fourth one is amount of a substance. Amount of a substance. The fifth one is temperature. The sixth one is luminiferous intensity. Luminiferous intensity. Okay, and the seventh one, amount of substance हो गया electric current. The seventh one is electric current. Okay, fine. So दोस्तों, ये 7 ऐसी क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी, इनको किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है. बाकी जितनी भी क्वांटिटी है इसके अलावा उनको इन सब की जरूरत पड़ती है. ओके, जिस तरह से हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था स्पीड. One more example, let's take this example. What is one more example? I may say area. So what is area? Area is length into length, right? बराबर length into breadth. Breadth is also a length, right? वो एक length ही है. So therefore area length पे depend करता है, right? Fundamental quantity पे depend करता है. One more example, volume. So volume is length into length into length. Length into breadth into height. Breadth और height भी length ही है, right? They are lengths. So therefore volume ऐसी चीज है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, राइट. फाइन. वन मोर एग्जांपल, डेंसिटी. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट. बट वॉल्यूम कैन बी रिटन एज लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ. Right? So therefore, can I now say that density
मास और लेंथ पे डिपेंड करता है, राइट? सो ये हो गई हमारी डिराइव क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है. ओके फाइन, हमने एक लिस्ट बना दिया. सो गाइस देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट इनके साथ एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी है. सप्लीमेंट्री आर, we'll just make a note of the supplementary ones. There are 2 supplementary quantities. One is called as the plane angle. Okay. Second is called as the solid angle. Now what is a plane angle? Plane angle is very simple, आप लोगों को पता है. For example, if these are 2 lines, then हम लिखते हैं ना theta equal to 50 degree. So ये 50 degree is nothing but it is a plane angle, right? Angle in a plane. Plane angle कब बनता है? जब 2 dimension हो, right? For example, this board is a 2-dimensional space. पर अगर 3D figure है, तो 3D में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं हम सॉलिड एंगल, राइट? सॉलिड एंगल इज नथिंग बट इट इज द एंगल मेड बाय अ 3-dimensional ऑब्जेक्ट. ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. चलो, एक टॉर्च है, टॉर्च से लाइट निकल रही है, तो आप देखते हो पूरा ऐसा सर्कल की तरह लाइट निकलती है, राइट? तो वहां पर जो एंगल बनता है दैट्स अ 3-dimensional एंगल, सो आई कैन काउंट दैट एज अ सॉलिड एंगल. ओके, वन रफ आइडिया. वील कम टू दिस लेटर. यहां कुछ और चीजें भी लिखनी है, बट गाइस दीज आर द बेसिक थिंग्स टू स्टार्ट विद. दोस्तों, अगर मैं अब हमारा डिस्कशंस अब यूनिट्स पे एक्चुअली लेके जाऊं, तो इधर लॉट ऑफ टाइप ऑफ यूनिट्स. फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वांटिटीज की बात करूं, फॉर एग्जांपल लेंथ की बात करूं, मास की बात करूं, टाइम की बात करूं, सो लेट अस राइट डाउन सम नोन यूनिट्स. ओके, सो लेट अस राइट डाउन सम यूनिट्स. फॉर एग्जांपल लेंथ की बात करूं, हाउ यू कैन मेजर लेंथ? सो आप बोलोगे सर लेंथ हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, लेंथ हम मीटर में मेजर कर सकते हैं, लेंथ यू कैन मेजर इन मिलीमीटर्स, लेंथ यू कैन ऑल्सो मेजर इन किलोमीटर, लेंथ को यू कैन ऑल्सो मेजर इन इंचेस. हाँ या ना? लेंथ को मेजर करते फुट में भी मेजर करते हैं लेंथ को. सिमिलरली देयर आर अदर वेज ऑफ मेजरिंग लेंथ. ओके, बहुत सारे मेथड्स है. यार्ड्स में मेजर कर सकते हैं, राइट? तो लेंथ एक ही है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटीज को अलग अलग यूनिट्स में हम मेजर कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल जनरली छोटे छोटे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इस पेन की साइज, तो आप इस पेन की साइज को सेंटीमीटर में मेजर करोगे, राइट? अगर मैं कहता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली, तो आप उसे किलोमीटर में मेजर करोगे, राइट? उस केस में आप सेंटीमीटर में नहीं मेजर करोगे, आप उस केस में किलोमीटर में मेजर करोगे. जनरली किलोमीटर में लिखा जाता है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट फॉर लेंथ. सिमिलरली फॉर मास, आई होप यू कैन ऐड अ फ्यू मोर हियर, राइट? यहां पर और बहुत सारे ऐड कर सकते हो. फॉर मास, मास कैन बी मेजर्ड इन ग्राम्स, मास कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन किलोग्राम्स, मास कैन बी मेजर्ड इन पाउंड्स, एक्सेट्रा. बहुत सारे यूनिट है. मास को भी मिलीग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, मिलीग्राम, राइट? बहुत सारे यूनिट्स है. ओके, सिमिलरली लेट्स टेक वन मोर, टाइम. टाइम को आप कैसे मेजर कर सकते हो? टाइम यू कैन मेजर इन सेकेंड्स, यू कैन मेजर टाइम इन आवर्स, यू कैन मेजर टाइम इन डेज, मिनट्स. ओके, मिनट्स, यू कैन मेजर टाइम इन ईयर्स, एक्सेट्रा. ओके, बहुत सारे मेथड्स हैं टाइम को मेजर करने. तो दोस्तों आप देख सकते हो एक ही फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं, राइट? बिल्कुल हो सकते हैं, बट हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स समझने हैं, ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सो दोस्तों देयर आर ऑल टुगेदर 4 systems of unit in which we need to study. Let's go for the first one. So the first one is CGS system of unit. CGS system of unit. या CGS unit system, जो भी कहना है. Second one is MKS system of unit. Third one, हम एक एक पे आएंगे. Third one is FPS system of unit. Fourth one is SI system of units.
Okay, let us try and understand. So what is CGS guys? Basically C, G और S, ये system of units कैसा आता है पता है? Based on your length, mass and time. Based on your length, mass and time. So in CGS unit guys, C stands for centimeter, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां पर लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स. G मतलब ग्राम्स, यानी मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स, और टाइम इज S स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स, राइट. तो आज के बाद आपको कोई भी कहे कि सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस मतलब वहां पर लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड टाइम मेजर्ड इन सेकंड्स. ओके, तो रिमेंबर दैट ये सिस्टम ऑफ यूनिट कंजर्व को है, पूरा का पूरा सेम है. अगर मैं कहता हूं, ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन जरा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो. मैं कहता हूं सीजीएस यूनिट सिस्टम में लेंथ इक्वल टू 10, तो आप सोचोगे लेंथ इक्वल टू 10 मतलब सीजीएस यूनिट में बात हो रही है, मतलब होगा 10 सेंटीमीटर. समझ में आ गया? आज के बाद मैं इसे डायरेक्ट कहूंगा सीजीएस सिस्टम मास इज 20. तो याद रखना सीजीएस यूनिट में मास कैसा मेजर किया जाता है? ग्राम से मेजर किया जाता है. ठीक है, सो दिस इज द स्पेशलिटी अबाउट दिस टाइप ऑफ यूनिट्स. सिमिलरली एमकेएस यूनिट में द लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, mass is measured in K, M for meter, K for kilograms, and time is measured in seconds. Time is measured in second. Similarly guys, FPS system of unit में length, mass और time कैसा measure किया जाता है? Length F stands for feet, P stands for pounds, and S stands for seconds. Okay, so कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट उड़ा लो, अगर एफपीएस में बात करो लेंथ इज 2 मतलब 2 फीट, राइट, बराबर. उस वहां पर एफपीएस सिस्टम में वी यूज फीट एज अ स्टैंडर्ड यूनिट. अच्छा, नाउ कम टू द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट. तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट इज वेरी क्लोज टू योर एमके सिस्टम ऑफ यूनिट. ओके, वेरी क्लोज. सो लेंथ इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट इज मेजर्ड इन kilograms, length is measured in meters, mass is measured in kilograms, and time is measured in seconds. Okay दोस्तों, time is measured in seconds. So these are different system of units which we need to remember. So guys, we'll only focus on SI system of units क्योंकि हमारे syllabus में या हमारे standard 11th और standard 12th और entrance examination के point of view से सिर्फ और सिर्फ हमारे SI system of units ही important है. Okay, बाकी system of units में हम कभी-कभी touch करेंगे, but we'll mainly focus on the SI system of units. Okay, fine. So if I talk about these fundamental quantities, then in fundamental quantities को किस तरह से हम उनका ऐसा यूनिट लिखते हैं, just have a look. So let's write down the symbol and SI unit for them. Okay, symbol. Length का symbol is capital L, M का symbol is capital M, this is T. Amount of a substance वो हम यू लिख सकते हैं. Temperature को generally it is written by theta. Luminiferous intensity we generally don't use that much, तो मैं इसको छोड़ दूंगा. ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इसको छोड़ दूंगा. इलेक्ट्रिक करंट को जनरली ए से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, कभी कोई बुक ए से लिखती है, कोई बुक आई से भी लिखती है. ठीक है, सो रिमेंबर दैट देयर इज अ सिस्टम डिफाइंड. कभी कभी आई से लिखा जाता है, कभी कभी ए से लिखा जाता है. ओके, सो बट जनरली इफ यू सी मोस्ट ऑफ द बुक्स देन ए से लिखा जाता है. नाउ कम टू द यूनिट. सो ऐसा यूनिट, तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? अभी अभी हमने देखा था मीटर, ऑल्सो रिटन एज स्मॉल एम, राइट. मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम, ऑल्सो रिटन एज केजी, बराबर. टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड, ऑल्सो रिटन एज जस्ट एस. अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, हाउ डू यू मेजर अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? मोल्स, बाय मोल्स, राइट, एंड शॉर्ट फॉर्म इज मोल, राइट. टेम्परेचर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? इट्स नॉट सेल्सियस, इट इज केल्विन. रिमेंबर दैट, इट इज केल्विन, represented by capital K. Luminiferous intensity we measured by some unit called as candela. इसका ज़्यादा यूज नहीं होने वाला. Electric current, how do you measure electric current? We measure electric current in amperes, right, capital A. Similarly, plane angle, how do you measure plane angle? We measure angle in radians. Radians is the SI unit, not degrees. Okay. And we also measure solid angle. So solid angle can also be measured in radians. Okay, fine. So these are basically
the unit system which we'll be following for my 7 fundamental quantities. Now दोस्तों, if I'm not wrong, this is steradian, not radian, steradian. Yeah, steradian. ऐसा यूनिट का सिस्टम है steradian. Sorry, solid angle का it is steradian. Okay, fine. अब दोस्तों कुछ ऐसा समझते हैं that is important for us to understand certain abbreviations. ठीक है, certain abbreviation also called as suffixes or prefixes. So let's understand some prefix. So दोस्तों, जब कभी मिली यूज हो, so मिली means 10 to the power -3. ठीक है, मिली का मतलब होता है जनरली 10 to the power -3. ओके फाइन, मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले आपको बता रहा हूं, बाकी तो आप लोगों को मोस्टली पता ही है, या तो यूज करना है तो हम यूज करेंगे. ठीक है, फाइन. मिली इज 10 to the power -3. किलो इज 10 to the power 3. ओके, मेगा is 10 to the power 6. okay, उसी तरह से if you see some more, then mega is 10 to the power 6. Then if you talk about let's say giga is 10 to the power 9. okay, आपने सुना होगा मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स इनके आते हैं. 10 to the power 6, 10 to the power 9. Similarly, what does nano mean? Nano means 10 to the power -9. नैनो का मतलब होता है 10 to the power -9. उसी तरह से फर्मी का मतलब होता है 10 to the power -15. Remember this. All these numbers are very important. Okay. Micro means 10 to the power -6. Micro means 10 to the power -6. उसी तरह से और भी बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स हैं हमारे पास जो हम स्टडी करेंगे. मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वाले आप लोगों के लिख दिए. ओके, पिको मतलब 10 to the power -12. मेनली आप लोग इतने यूज करोगे मेनली, पर इसके हटके भी थोड़े बहुत है जो हम जब जैसे आएगा व्हेन टाइम कम्स आई विल एक्सप्लेन यू ऑल. ओके